Good morning everyone, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So in our today's class we will start our new topic of EVS. So without wasting time, let's start. So this is our chapter 13, Simple Machines. In this chapter we will learn about some different machines which makes our work easier, right? मशीन इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट वर्क ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे उन मशीन्स की बात नहीं हुई है. मशीन्स वो चीज़ है, वो डिवाइस है दैट मेक्स अवर वर्क ईजियर, दैट मेक्स और कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क, राइट. इट मे बी सीजर, पुले, रेंच, जैसे कि आपको एग्जांपल्स दिखा रखे हैं, शो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हमारा वर्क काम आसान बनाती हैं, जो हमारा काम करती हैं, वो मशीन्स होती हैं. ओके. सो आज के चैप्टर में हम इन्हीं डिफरेंट मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Let us define simple machines. Machines that have few or no moving parts are called simple machines. The beauty of the simple machines is that they are used as extension of our muscles. There are 6 types of simple machines. They are inclined plane, wheel and axle, pulley, lever, wedge and screw. We will learn about each machine in detail, but after a short activity. Inclined plane. An inclined plane is a flat surface that is higher at one end, and it makes work easier. Equal to longer distance takes less effort. It is a simplest machine because nothing moves to make it work. A ramp, a slide, and stairs are the examples of inclined plane. Wheels and axle. Do you enjoy riding bicycle? Then you are using the simple machine, wheel and axle. In this, a wheel turns on a post to help move things quickly and easily. The wheels in a bicycle, steering of car, doorknob are also the examples of wheels and axles. Pulley. See this boy. He is taking out the water from the well, but he is not able to pull the bucket. Now he is pulling the bucket of water with the help of pulley. A pulley uses a wheel and a rope to lift the load. Since it is used to pull the things, that's why it is called pulley. It is used in crane, a flagpole, and a mini blind. Levers. How do you think a seesaw works on the ground? As such, you cannot lift your friend so high. But when you are at the other end of seesaw, it is so easy to lift him. When you and your friend are sitting at the two ends of the seesaw, it has a fixed point at center. This fixed point is called fulcrum. The force you apply to lift your friend is called effort. Your friend at the other end is the load. A lever is a straight bar that moves on a fixed point. A lever helps you to move a load easier. The examples of lever are seesaw, plier, and a bottle opener. There are 3 types of levers. Let us discuss them in detail in our next screen. First class lever. Can you lift a giant stone with your hands? The answer is no. But you can do it easily with help of a stick, which is a first class lever in this case. In first class lever, fulcrum is at center. It is located anywhere between the load and effort. Crowbars and scissors are the example
of first-class levers. In case of scissors, fulcrum is at the center. It is fixed and effort is to put from the back and load is from front. Second-class lever. It seems these children are enjoying the ride on this wheelbarrow. Their father is using a second-class lever to carry them. In the second-class lever, effort is on one side, the fulcrum at the other side, and load at the center. A wheelbarrow, a nutcracker, or a bottle opener are the examples of second-class lever. Third-class lever. Many people enjoy fishing. For this, they use a fishing rod, which is a third-class lever. In case of fishing rod, effort is in the center, load is on one side, and fulcrum at another end. This type of lever is called the third-class lever. Arm, fishing rod, broom, stapler are the examples of third-class levers. Screws. Screw is also a simple machine. It looks like a nail with grooves. A screw is an inclined plane wrapped around a shaft. It takes less force to turn a screw because a screw moves a longer distance. A screw, a corkscrew, and a jar lid are the examples. A nail comes out easily, but a screw doesn't. We can hang up the loads on the screws on the walls. We can close a jar tight with the help of screws. The screw in a jack moves and takes the car up. A simple screw can lift a car. That is the reason it is called a simple machine. Wedges. A wedge is a two inclined planes together used to raise an object or split an object. Knife, axe head, screwdriver, chisel are few examples of wedges. So as you all learned about the different types of machine, now let's read about it. A machine. What is a machine? A machine is a device that can do work. मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो वर्क कर सकता है, राइट? We usually think of a machine as a complicated device with many parts and powered by some sort of engines and by electricity. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, as I said earlier, that machines is not like जो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसे ही सिर्फ मशीन नहीं बोलते. मशीन्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे काम को ईजी बनाता है एंड जो हमारी उस काम में लेस एफर्ट डालने में मदद करता है. But actually, machine is a tool which makes our work easy, right? We may have difficulty in lifting a heavy box by our hands, but we can lift it with a machine easily. हम किसी हैवी बॉक्स को उठाने में हमारे एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, हमें दिक्कत आ रही है, बट विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन लिफ्ट इट ईजली, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, वेल्स होता है, कुएँ होते हैं, उस पर भी एक मशीन लगी होती है. क्या है उसका नाम? पुले, जिसकी मदद से एक साइड से हम खींचते हैं एंड एक साइड से बाल्टी नीचे जाती है और पानी ऊपर आ जाता है, राइट? हमारा काम इजी हो गया, वेल से पानी निकल गया, राइट? सो पुले इज़ ऑल्सो अ मशीन. हमें पेपर कट करना है, हम हैंड से पेपर कट करते हैं, वो रफली पेपर कट होता है, राइट? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ सीजर वी कैन कट द पेपर इन अ वेरी ईजी मैनर एंड नीट मैनर, राइट? सो ये सब हमारी मशीन्स ही हैं. ये जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं इन्हें भी हम मशीन्स ही बोलेंगे, जस्ट बिकॉज ये हमारे काम को आसान बनाते हैं और हमारा लेस एनर्जी यूज़ होती है उन काम को करने में. सो द अमाउंट ऑफ वर्क इन बोथ द केसेस इज सेम, बट अ मशीन परमिट अस टू यूज़ लेस एफर्ट. मशीन क्या करती है? मशीन परमिट अस मीन्स मशीन अलाउ अस और वी कैन से मेक समथिंग हैपन डैट हमारे एफर्ट्स लेस यूज़ होते हैं. द लॉ ऑफ मशीन स्टेट दैट द वर्क आउटपुट ऑफ अ मशीन इज
ऑलवेज इक्वल टू द वर्क इनपुट। सी इसमें क्या बोला गया है कि हम मशीन के अंदर जितना इनपुट लगाएंगे वो हमें उतना ही आउटपुट देगी। वर्क आउटपुट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वर्क इनपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पेपर कट करना है तो हम सीज़र को जितना चलाएंगे अपने हैंड से तभी तो पेपर कट होएगा ना। हम इनपुट लगाएंगे, आउटपुट आएगा, पेपर कट हो जाएगा। पुले है, हमें किसी चीज़ को पुल करना है तो हम यहाँ से अपने एफ़र्ट लगाएंगे दूसरी साइड से, तभी तो दूसरी साइड से जो चीज़ है वो ऊपर पुल होएगी, राइट। बोतल ओपनर है, एफ़र्ट लगाएंगे तभी तो बोतल का कैप ओपन होएगा, राइट। सो मशीन में जितना हम इनपुट लगाएंगे उतना ही वो हमें आउटपुट देगी। वर्क आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क इनपुट। Machines do not work themselves, they only help us in doing the work। सी जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि मशीन खुद से तो वर्क नहीं करती है, जो सिंपल मशीन है वो खुद से वर्क नहीं करती। दे ओनली हेल्प अस इन डूइंग द वर्क, वो सिर्फ हमारी हेल्प करती है। अगर हम इनपुट लगाएंगे तो हमारा काम आसान होगा, तभी आउटपुट निकल के आएगा, राइट। तो ये थी हमारी सिंपल मशीन्स के बारे में। नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ मशीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में जैसे कि आपने जाना, अब हम उनके बारे में रीड करेंगे। दे आर 6 काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन। दे आर फर्स्ट लीवर। लीवर 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट ऑफ आवर सिंपल मशीन इज़ द लीवर। द टूल्स विच वी यूज़ एवरी डे लाइक सीजर्स, प्लायर्स, बॉटल ओपनर्स, हैमर्स, फोर्सेप्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लीवर। ये सब लीवर्स होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में जो डिफरेंट छोटे छोटे टूल्स यूज़ करते हैं वो सब लीवर्स ही होते हैं। अ लीवर इज़ अ बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट वन पॉइंट। लीवर इज़ जस्ट लाइक अ बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट वन पॉइंट। द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड विथ लीवर इज़ कॉल्ड द लोड। लीवर की मदद से जो ऑब्जेक्ट मूव होएगा वो क्या होगा, लोड कहलाएगा वो। कि मीन्स लीवर फॉर एग्जांपल सीज़र है तो सीज़र में लोड किस तरफ पड़ रहा है, आगे की तरफ। वो हम आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब हम डिफरेंट टाइप्स के लीवर पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिए कि लोड किसे कहते हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड विथ अ लीवर इज़ कॉल्ड, जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है विद अ लीवर, लीवर जो मशीन है उसकी मदद से जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या फिर जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है वो लोड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट इज़ कॉल्ड एफर्ट। जिस फोर्स से वो काम हो रहा है, जो मशीन के अंदर आउटपुट डाल रहा है, जहाँ पे जिस साइड पे आउटपुट डल रहा है वो क्या है, एफर्ट। द लीवर टर्न्स अराउंड अ सपोर्ट और पाइवट कॉल्ड द फल्क्रम। उस मशीन को जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है वो चीज़ क्या कहलाएगी, फल्क्रम। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम। फल्क्रम इज समथिंग विच गिव्स बैलेंस और सपोर्ट टू द मशीन। फल्क्रम एक ऐसा पॉइंट होता है मशीन के अंदर जो उसे बैलेंस करता है, उसे सपोर्ट देता है। लोड जो उस मशीन जो जिस पे काम कर रही है, जहाँ लोड पड़ रहा है वो लोड है। एफर्ट हमारे एफर्ट्स। फॉर एग्जांपल सीज़र, सी देखो, सीज़र में फल्क्रम कहाँ है, कहाँ से बैलेंस हो रही है, यहाँ पे। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, यहाँ पे जो स्क्रू लगा होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फुलक्रम। एफर्ट कहाँ है, पीछे की तरफ से हम सीज़र को चलाते हैं, राइट, यहाँ पे अपनी फिंगर्स डाल के। एंड लोड कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ। सो बीच में फुलक्रम है, लोड आगे है एंड एफर्ट पीछे है, बीच में फुलक्रम है। ये वाली जो मशीन्स होती हैं वो कहलाती हैं फर्स्ट क्लास लीवर मशीन्स। लेट्स रीड अबाउट इट फर्दर। Levers are classified into 3 classes on the basis of the load, effort and fulcrum. Levers जो हैं वो 3 class पे based हैं, load, effort and fulcrum on the basis of that. First class lever, lever of class 1. When the fulcrum is between the load and the effort, it is called lever of class 1. Scissors, claw hammers, crowbars, pliers, etc. are examples of the lever of first class. See,
लोड एंड एफर्ट के बीच में जो फुलक्रम होगा वो फर्स्ट क्लास लीवर की मशीन्स होंगी। जैसे कि मैंने आपको सीजर्स के लिए बताया, लोड आगे पड़ रहा है, एफर्ट पीछे, एंड बीच में फुलक्रम है, सपोर्ट उसको बीच में से मिलता है ना सीजर को। सेम ऐसे ही हैमर में लोड आगे की तरफ पड़ रहा है, फुलक्रम बीच में है, सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है एंड एफर्ट पीछे से लग रहा है। प्लायर्स में भी सेम, लोड आगे, एफर्ट पीछे, बीच में फुलक्रम, सपोर्ट बीच में से मिल रहा है। सो ये वाली जो मशीन्स होती हैं ये फर्स्ट क्लास लीवर्स कहलाती हैं। सेकेंड इज लीवर ऑफ सेकेंड क्लास। व्हेन द लोड इज बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट इज कॉल्ड द लीवर ऑफ क्लास सेकेंड। सी, अब इसमें लोड बीच में है, एफर्ट भी आगे की तरफ है, लोड भी बीच में है एंड फुलक्रम पीछे है। मीन्स फुलक्रम आगे की तरफ है, फिर लोड है, देन एफर्ट है। जैसे व्हील बैरो, अब यहाँ पे देखो इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, इसको सपोर्ट इस व्हील से मिल रहा है, यहाँ पे है फुलक्रम, इट इज़ द फुलक्रम जो सपोर्ट दे रहा है। सपोर्ट क्या दे रहा है, सपोर्ट इसे व्हील दे रहा है, व्हील के बीच में ये जो पॉइंट है ये है हमारा फुलक्रम। फुलक्रम आगे की तरफ हुआ, अब लोड इस व्हील बैरो में हम कुछ सामान रखेंगे तो लोड कहाँ पे पड़ेगा, बीच में पड़ेगा, राइट। एंड एफर्ट कहाँ से, इसको चलाएंगे तो हम ही ना, हम यहाँ पे इसको चलाएंगे तो एफर्ट कहाँ से आ रहे हैं, एफर्ट यहाँ से आ रहे हैं, तो हो गया ना फुलक्रम आके, बीच में लोड, फिर एफर्ट। सेम एज इन बोतल ओपनर, बोतल ओपनर में सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, सपोर्ट आगे की तरफ से मिल रहा है बोतल ओपनर में, लोड कहाँ पड़ रहा है, सेंटर पे पड़ रहा है, एंड एफर्ट पीछे से लग रहे हैं, राइट। सी, जो सेकंड क्लास लीवर्स की मशीन होती हैं उसमें लोड सेंटर में होता है एंड जो फर्स्ट क्लास होते हैं उसमें फुलक्रम सेंटर में होता है। मीन्स उन्हें सपोर्ट, फुलक्रम इज़ व्हाट, फुलक्रम इज़ द सपोर्ट ऑफ द लीवर, सपोर्ट ऑफ द मशीन, तो उन्हें सपोर्ट बीच में से मिल रहा है, राइट। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, एफर्ट हमारे एफर्ट्स हैं उस मशीन को चलाने में, एंड लोड इज़ द ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है उसे हम लोड बोल रहे हैं। ऐसे ही कार्ट को सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है, दिस इज़ द फुलक्रम, लोड कहाँ है, लोड यहाँ सेंटर में है एंड एफर्ट यहाँ से, सो लोड बिटवीन में हुआ, बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट। एंड फर्स्ट क्लास मशीन में फुलक्रम इज़ बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। एंड in the third class lever, effort is between the load and fulcrum. When the effort is between the fulcrum and the load, it is called the lever of class third. Example, forceps, fishing rods, tongs are example of the levers of class third. For example, ये देखो फिशिंग रोड है, ये जो है इससे हम घुमाते हैं, लोड आगे की तरफ पड़ रहा है इसमें, राइट, एफर्ट बीच में डाले जा रहे हैं, हम इसे घुमाते हैं तभी तो वो पुल होता है, एफर्ट बीच में डाले जाते हैं एंड यहीं पे है फुलक्रम, यहीं से उसे सपोर्ट मिल रहा है। सो फुलक्रम, एफर्ट, लोड, एफर्ट कहाँ गया, बीच में आ गया। सी, इन डिफरेंट टाइप्स के लीवर्स, इन डिफरेंट टाइप्स की मशीन को याद करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लोड, एफर्ट एंड फुलक्रम कहाँ है। व्हेन द एफर्ट इज़ बिटवीन द लोड एंड द फुलक्रम, वो है क्लास थर्ड लीवर्स मशीन। व्हेन लोड इज़ बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम, वो है क्लास सेकेंड लीवर मशीन। व्हेन फुलक्रम इज़ बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, वो है क्लास फर्स्ट लीवर मशीन। सी, जो हमारे प्लेग्राउंड में सीसो होता है, राइट, सीसो पे आप सब बैठे होंगे, एक बच्चे यहाँ बैठते हैं, एक बच्चे यहाँ बैठते हैं, बीच में क्या होता है, बीच में सपोर्ट मिलता है उसे। सी, जो टॉप पे गया है, एफर्ट यहाँ से डाले जाते हैं, जब आप नीचे को करते हैं सीसो को तो ये वाली साइड ऊपर की तरफ जाती है, लाइट, लोड होता है ना इस पर, फिर आप यहाँ से एफर्ट डालते हो, वो ऊपर जाती है, राइट। सो लोड यहाँ हुआ, एफर्ट यहाँ होता है, फुलक्रम सीसो में हमेशा सेंटर पॉइंट पे फुलक्रम होता है, मीन्स सेंटर से ही उसे सपोर्ट मिल रहा होता है, तभी तो ये ऐसे बैलेंस होती है सीसो। सो फर्स्ट क्लास लीवर्स में फुलक्रम इज़ इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, सेकेंड क्लास लीवर में फुलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है, एंड क्लास थर्ड में एफर्ट इज़ बिटवीन द लोड एंड द फुलक्रम। ओके, सो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स के लीवर्स थे। नाउ कम टू द सेकेंड मशीन, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन जैसे कि आपको दिखा है, प्लेन एरिया जो होता है, जिसके जैसे हमारी स्टेज हो गई,
इट्स लाइक अ स्लोप जो हमें हमारा काम इजी बना देती है, राइट। एन इंक्लाइन प्लेन इज़ अ स्लोप विच मेक्स वर्क ईजियर. वॉकिंग अप a slope is easier than climbing a ladder to the same height. Walkers use a plank as an inclined plane to load and upload a truck. Roads in hilly areas have gradual slopes so that vehicles may ascend the hill safely. See, प्लेन एरिया में जो व्हीकल्स ले जाने में ज़्यादा आसानी रहती है. अगर वहाँ पे स्टेयर्स वगैरह कुछ हो तो वहाँ पे हम व्हीकल नहीं ले जा सकते, राइट. प्लेन एरिया होगा तभी हम व्हीकल ईजिली मूव कर सकते हैं, कार्ट को ईजिली ले जा सकते हैं. बैरो जो होता है, व्हील बैरो होता है, इसको भी हम उस पर चला सकते हैं, राइट. सो इंक्लाइन प्लेन इट इज़ नॉट. आपने वीडियो में भी अभी देखा कि इंक्लाइन प्लेन जो हैंडीकैप लोग होते हैं जो स्टेयर्स पे नहीं चल सकते, उनके लिए भी हमें एक मशीन आती है. इट्स एन इंक्लाइन प्लेन जिससे हम उनकी जो व्हील चेयर होता है उसे ईज़िली नीचे ला सकते हैं. स्टेयर्स में भी हम प्लेन एरिया बना देते हैं, राइट. जो आपके प्लेग्राउंड में, दिस इज़ ऑल्सो एन इंक्लाइन प्लेन. सो दीज रोड्स आर इन फैक्ट इंक्लाइन प्लेन्स. अ स्लाइड इज़ ऑल्सो एन इंक्लाइन प्लेन. ये जो स्लाइड्स होती हैं आपके प्लेग्राउंड्स में, ये भी क्या है इंक्लाइन प्लेन. ये प्लेन एरिया है. Now come to wedge. A wedge is a small inclined plane. Instead of pushing a load up the incline, the entire wedge is driven under and into the load as shown in the diagram. See, it is also an inclined plane. इसे inclined plane क्यों बोला गया? क्यों? ये देखो, ऊपर से मोटा है और नीचे से ऐसे प्लेन हो रहा है. ये भी एक प्लेन एरिया की तरह है, राइट. बट इसमें क्या फ़र्क है? ये जो इंक्लाइन प्लेन्स है इसके ऊपर से लोड लेके जाया जाता है. आप इस स्लाइड के ऊपर बैठते हो और आपका लोड नीचे आ जाता है, राइट. ऐसे ही अगर किसी स्पेसिफिक एरिया पे ऐसे इंक्लाइन प्लेन्स बने होते हैं तो लोड ऊपर से जा रहा है, राइट. बट ये जो वेज है इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक ए इंक्लाइन प्लेन, बट इसमें क्या फ़र्क है? ये लोड के अंदर ही चला जाता है. सी, वुड के अंदर हम वेज को डाल देते हैं और ऊपर से हम हैमर मारते हैं तो वो वुड कट हो जाती है. सो व्हेन वी यूज़ अ वेज द एफर्ट इज़ अप्लाइड टू द हेड एंड थिक एंड द लोड एक्ट्स अगेंस्ट द लॉन्ग स्लोपिंग स्लाइड. हम एफर्ट कहाँ डाल रहे हैं? ऊपर की तरफ से डाल रहे हैं. ऊपर हैमर मारेंगे, इसके थिक एरिया के ऊपर ऐसे हैमर मारेंगे. ये जो इसका ये वाली साइड होती है वो बहुत शार्प होती है तो वो इसको कट कर देगी. द वेज इज़ हेल्पफुल इन सेपरेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स डेट आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्रेट फोर्स. ये दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देती है, राइट. वेज आपने देखा भी होगा. हैमर की मदद से हम किसी भी चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, हैमर एंड वेज की मदद से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आज हमने 3 टाइप्स की मशीन के बारे में जाना. फर्स्ट इज़ लीवर, सेकंड इज़ इंक्लाइन प्लेन एंड थर्ड इज़ वेज, राइट. आप अभी इन्हीं के बारे में रीड करेंगे. In our next class, we will learn about some further simple machines. So this is all about today. Thank you and take care.